What is the biggest fear of people today? Is it World War III or water crisis or artificial intelligence or some alien attack, global warming? What is the real fear people have in their hearts but they don't say about it? People fear people the most. There is a lady in USA who is a doctor and her name is Pat LaDusa, and she helps people to release their stress, anxiety and emotional disorders. So there was a study done by her that what is the most fearful thing in the world for people. So what people fear more than death? And the answer is public speaking. And when she diagnosed deep into why people fear public speaking the most, she identified some root causes of the problems people have to deal with their own emotions. So it's not about the people fearing other people or speaking on stage, it was about being comfortable with your own emotions. So that was the biggest discovery of her life, and when I got to know about this, when I read this, मुझे लगा कि this is why we all need to heal our inner child. See, all the fears and the root causes of our emotional problems are not based on our current reality. It is because of the decisions we have taken in our childhood because of our experiences. तो जितने भी इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस होते हैं, जैसे फियर, जैसे रिजेंटमेंट, गिल्ट, क्रिटिसिज्म, जैसे फियर को फेस नहीं कर पाना, क्रिटिसिज्म को सहन नहीं कर पाना, जैसे कि किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाना, जितने भी इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी जो रूट कॉज होती है वो होती है चाइल्डहुड में. So this was a beautiful study which I wanted to share with you. So in today's world, why people fear other people is not because they're going to judge them or they're going to criticize them or they're going to hurt them in any way. But the real problem is people don't know how to accept their own emotions, how to process the information their emotions gives to them, and how to proceed ahead in their lives with the same emotions they have to deal every single day. And that is how the inner child healing comes into picture. So inner child healing matlab kya hota hai? To understand your emotions at such a deep level that it becomes your strength and not your weakness. So what if you heal your inner child? एंड वॉट इफ़ यू डोंट हील योर इनर चाइल्ड? अगर आप अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज यू हैव ट्रबल सेटिंग द बाउंड्रीज. So you let people in your life and you let them interfere with your life's decisions. So if you do not have healed your inner child, there might be a possibility that you might allow people to interfere in your life and it's difficult for you to set boundaries. The second is you have weakened yourself. योर कॉन्सेप्ट अबाउट योर सेल्फ, हम अपने आप के बारे में जो सोचते हैं, हमारे अपने आप की जो एक इमेज होती है हमारे मन में, हम उसको वीक करते जाते हैं जस्ट बिकॉज वी आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट. द पीपल हु हैव नॉट हील्ड देयर इनर चाइल्ड आर इमोशनली नॉट सो इंटेलिजेंट, सो दैट इज हाउ they create a weaker version of themselves. Anxiety and stress is having the root cause in the childhood only. So if you have any of the stress or anxiety disorders, the root cause might be in childhood, and that is why inner child healing is required. If you do not heal your inner child, you constantly need reassurance. आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले 4 लोगों से पूछेंगे कि मैं ऐसे करूँ क्या, मैं वैसे करूँ क्या, मैं ये करूँ क्या, मैं वो करूँ क्या. अपनी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन भी आप किसी और से पूछ के करने लगेंगे क्योंकि आपको हर चीज़ में वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट होगी. एंड दैट इज़ वाई टू बी इंडिपेंडेंट यू नीड टू हील योर इनर चाइल्ड. And the most important point, if you do not heal your inner child, you will have strong possibilities that
You will be difficult in expressing yourself, in dealing with your own thoughts and emotions. So that is why inner child healing is for everyone, and everyone needs inner child healing. So what happens when you heal your inner child? जब आप अपने inner child को heal करते हैं तो आप अपनी लाइफ के सारे एरियाज को बैलेंस करते जाते हैं. आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका मनी एंड फाइनेंशियल एरिया ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है. आप कैसे पेरेंट हैं या आपका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ में इम्प्रूव होता है. फैमिली का जो कनेक्शन होता है वो इम्प्रूव होता है. Health, wealth, relationships, all the areas of our lives are improved when we heal our inner child. So let me share a story with you. So इस स्टोरी के हेल्प से आपको ये समझ में आएगा कि इनर चाइल्ड का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में, और उसको हील करने के बाद में हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस या इम्प्रूवमेंट्स आते हैं. So let's start the story. So there was a girl whose name was Sarah. So Sarah experienced neglect and abandonment in her childhood. So neglect का मतलब ये नहीं होता है कि पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया या फिर उन्होंने अबंडन कर दिया, ऐसा नहीं है. हम एक ही घर में रहते हुए, अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हुए भी नेगलेक्ट को फील कर सकते हैं, लोनलीनेस को फील कर सकते हैं. हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें हम क्या डिसीजन लेते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाता है. स्पेशली किड्स आर रियली ईगोसेंट्रिक. तो उनके आसपास की जो दुनिया होती है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो वहाँ से जो एक्सपीरियंस लेते हैं उसके बेसिस पे अपनी एक रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में. एक वर्चुअल रियलिटी होती है, वो रियल रियलिटी हो या ना हो. सो दैट इज़ वाई सम पीपल एक्सपीरियंस लोनलीनेस और नेग्लेक्ट और अबंडनमेंट इन देयर लाइफ. एंड उसका इम्पैक्ट क्या होता है आगे की लाइफ में. दीज काइंड्स ऑफ पीपल हैव फियर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स. वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस हैं उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. दैट इज़ हाउ हर मैरिड लाइफ स्टार्टेड टू गेट अफेक्टेड. शी वॉज हैविंग अ डीप फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड. शी वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज इन हर रिलेशनशिप. इमोशनली भी डिस्टेंट होते हैं, दे नॉट गेट अलॉन्ग विद पीपल इजीली. वो इमोशनली दूसरों से डिस्टेंट, एक डिस्टेंस बना के रखते हैं. इनसिक्योरिटी और जेलसी की फीलिंग डेवलप होती है. को डिपेंडेंस, दूसरों पर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. को डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या तो अपने पार्टनर पे, या तो अपने पेरेंट्स पे, या तो अपने कॉलीग्स पे, या तो अपने फ्रेंड्स पे. वो दूसरे लोगों पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रखते हैं. उनकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज होती है, स्ट्रगल्स होते हैं, एक पैटर्न रिपीट होता रहता है इन मिसकम्युनिकेशन. जैसे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, मिसकम्युनिकेशन होता है. वो डिस्प्यूट्स को अच्छे से सेटल नहीं कर पाते हैं, वो अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता पाते हैं. तो जो पैटर्न्स होते हैं वो लाइफ में बार बार रिपीट होता है. बट व्हेन शी गॉट टू नो अबाउट इनर चाइल्ड हीलिंग एंड शी वर्क ऑन हर सेल्फ, देन शी गॉट टू रियलाइज़ कि उसकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आज की नहीं है. ये बहुत साल पहले जब उसके चाइल्डहुड में कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के कारण जो अपने आसपास की दुनिया में जो हो रहा था, उन एक्सपीरियंस को अपने अंदर लेके उसने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली थी. तो वो वहीं से ऑपरेट कर रही थी अपनी लाइफ, इवन आफ्टर हर अडल्टहुड. तो इवन आप जब बड़े हो जाते हो तब भी आप एक 5 ईयर ओल्ड, 6 ईयर ओल्ड, 8 ईयर ओल्ड की तरह बिहेव करते हो इन सम सिचुएशन इन योर लाइफ. एंड दैट इज़ हाउ योर इनर चाइल्ड कम्स इनटू पिक्चर. सो जब भी हम अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं, वी डू नॉट ओनली हील आवर सेल्फ, वी हील एवरीथिंग अराउंड आवर सेल्फ. हमारे घर का इन्वायरमेंट, हमारे फैमिली के साथ रिलेशंस, हमारे हस्बैंड एंड वाइफ के साथ में जो रिलेशंस है, किड्स के साथ में जो रिलेशंस है, हमारा मनी के साथ में जो रिलेशंस है, जो हमारा सक्सेस के साथ में जो रिलेशन है. वी हैव रिलेशनशिप विद एवरीथिंग अराउंड अस, एंड दैट इज़ हाउ वी हील आवर लाइफ होलिस्टिकली. एक 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. एंड दैट इज़ वाई इनर चाइल्ड हीलिंग इज सपोज टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पर्सनल डेवलपमेंट, बिकॉज वंस you have disrupted your old self, then only you can move on to the personal development. So personal disruption is the key to personal development. और ये personal disruption होता कैसे है? Through inner child healing. We disrupt our level 1 which is not serving us anymore, and then only we can move forward to the level 2, that is personal development. So inner child healing
is the ABC of personal development.